हेलो बच्चों। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस और टैकल करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखें। ध्यान दें, इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर क्या कर रहा हूँ, लुक एट फ्रॉम हेयर टू हेयर देयर इज़ अ वायर विदाउट कैपेसिटर। लुक एट अ वायर, दिस इज़ अ वायर विदाउट कैपेसिटर. So there are many methods, but the preferable method which can give you at once answer is just connect the cell in between A and B, because my question is to find out the capacitance between A and B. If you know the method very well, this is V1, because from here to here to here to here there is no capacitor. It means still there is no drop of potential. There is no change in potential because it's a capacitor which has two plates at a different potential, and unless and until you're having a wire which is not having any device or capacitor, there is no drop of potential. And from here to here to here to here, can you tell me what you can write it as potential V1? Now, if you move on the upper side, there is a capacitor. Now you cannot write V1. But if you go to the lower portion, so what will you get? You will get V1 again. Now move to from here to here. This is V2. What is here? V2. But if you move to the upper wire where the capacitor is not present, this is still V2. Now the question becomes very simple. I think almost it's over. Look at the capacitor number 1. What is the potential difference between first capacitor is a V1 minus V2. पहले बड़ा बोल लेना फिर छोटा बोलना. What is the potential difference in the 2 microfarad capacitor? This is V1 and V2. What is the capacitance? What is the potential difference of the third capacitor? Is the same V1 and V2. And tell me बच्चों, if having same potential difference across each of the capacitor, whatever the circuit may be, these capacitors are not in series. These capacitors are in parallel. And if you know the very well what is the net capacitance between A and B, as soon as I get the same potential difference, I will say surely that these capacitors are in parallel. That will give me the answer of 6 microfarad. So easy. Once you get all of the rules of the series and parallel, none of the competitive or school question, none of the question can harm you at any way. The only thing is you have to listen for each and every trick to settle down the things. Why I'm doing it for plain wires? Because I'm keeping all questions of same kind so that आपकी पहले इस पॉइंट पे प्रैक्टिस हो जाए. नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन. बच्चों ये क्वेश्चन एक नीट में आया हुआ एमसीक्यू भी था. There are 3 capacitors C, C and C. मतलब all 3 capacitors are placed. These are identical. If someone asks me what is the net capacitance between A and B, so what to do? I will first make a cell like this V1 and V2. अगर आपको प्रैक्टिस हो गई है तो दिस इज V1, because the capacitor is not present from here to here according to common potential, according to steady state condition. मैं यहाँ पर भी पोटेंशियल को V1 लिख लूँगा. इवन मैं यहाँ की बजाय ऊपर भी लिख लूँगा क्योंकि यहाँ भी अभी तक कोई डिवाइस नहीं है. मैं यहाँ भी लिख लूँगा. आई विल राइट V1. नाउ लुक एट V2. बच्चों जब V2 यहाँ से बनाओगे तो यहाँ पर V2 आ जाएगा. लेकिन जब ये V2 यहाँ आएगा तो आप सेम वायर होने के कारण V2 लिखेंगे, यहाँ भी V2 लिखेंगे. नाउ लुक एट द वेरी स्पेशल थिंग. बच्चों क्या आपने गौर किया इस कैपेसिटर को क्या प्रॉब्लम है? ये कैपेसिटर फिगर में है
लेकिन इसके ऊपर भी V2 है, नीचे भी V2 है, मतलब इस कैपेसिटर को पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिला। और बच्चों, जिस कैपेसिटर को पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिला, डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल वो चार्ज स्टोर में पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं। आपकी फिगर में दिख रहा हर कैपेसिटर तभी चार्ज स्टोरेज में कैपेसिटेंस में पार्टिसिपेट करता है अगर उसको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, तभी मैं कह पाऊंगा Q इज इक्वल टू C टाइम डेल्टा V, बिकॉज आपका स्टोर्ड चार्ज डेल्टा V की स्टोरी पे डिपेंड करता है। कई बार फिगर में दिख रहे क्वेश्चन आपको जिसको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिख रहा है, आप कह सकते हैं कि वो कैपेसिटेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। अब जरा इन दो कैपेसिटर्स को देखें। बच्चों, टेल मी व्हाट इज द पोटेंशियल ओवर हियर V1 and here V2? What is the potential over here V1 and V2? This and this, both of the capacitors are getting the same potential difference, but if the capacitors are in same potential difference, अगर आप गौर करें तो ये कैपेसिटर तो आपस में सीरीज में है और सॉरी पैरेलल में है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, एंड द थर्ड ऑफ द कैपेसिटर इज नॉट इन द पिक्चर, क्योंकि वो जो दिख रहा है वो कैपेसिटेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। सो यू विल गेट व्हाट C and C, and you will get a net answer of twice of C. Let's make it more complicated, bit heavier. Look at this question. This question is one step more than the previous. अब ये यहाँ से एक स्टेप और बढ़ गया है ना? अब जरा यहाँ देखें। अगर मैं आपको कहूँ कि इस क्वेश्चन में मेरे पास कैपेसिटेंस कितनी है इस क्वेश्चन में, तो मैं फिर क्या करूँगा? मैं इस क्वेश्चन में एक बार फिर यहाँ पर सेल लगाऊंगा। थोड़ी ही देर में जब आप ऐसी चीज़ें करने लगेंगे, आपको इन चीज़ों की अपने आप ही आदत पड़ने लगेगी। बच्चों, टेल मी, इज इट कॉल्ड V1, इज इट कॉल्ड V2? एंड सेम वे आई विल कीप इट V1 हियर। बच्चों, अगर ये V1 है तो लुक एट द वायर, आई विल राइट V1 हियर आल्सो। बच्चों, यहाँ पर V2 है, टेल मी, आई विल राइट V2 हियर। बट सिंपल वायर जहाँ प्रेजेंट होगी वहाँ पोटेंशियल को प्रेफर कर लेना, वहाँ पर मैं V2 लिख दूंगा। लेकिन बच्चों, आज पहली बार एक प्रॉब्लम आई है। मैंने V1 भी बांट दिया है, V2 भी बांट दिया है जहाँ तक बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ एक कैपेसिटर है। अगर यहाँ एक कैपेसिटर है, यहाँ V1 है, कैपेसिटर आ गया है, तो मेरे को पता है यहाँ के पोटेंशियल का नाम अब V1 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल में कोई डिफरेंस होगा। क्योंकि एज सुन एज कैपेसिटर सर्किट में आता है तो हमारे पोटेंशियल में एक ड्रॉप आ जाता है। तो बच्चों ध्यान दें, मैं कुछ भी कर सकता हूँ पर इसका नाम ना तो V1 लिख सकता हूँ ना V2, क्योंकि दोनों के बीच में कैपेसिटर। एंड सेम प्रॉब्लम इज ओवर हियर आल्सो, दिस इज V2, बट कैन यू टेल मी यहाँ क्या लिखूँ? V2 तो नहीं लिख सकता, इधर से V1 भी नहीं लिख सकता, आई एम राइटिंग V डबल डैश। तो मैंने V डबल डैश लिख दिया। सम टाइम आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा नाम डालने पड़ सकते हैं। आप इसे रीअसेंबल करें, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना सीधा नहीं है। जो भी आपकी सेल की वोल्टेज है हमेशा साइड पे लिखें, और जितने भी आपने अपने आप नाम लिखे हैं अपने आप, उनको कहीं इन बिटवीन लिख दें। सेल वाले नाम साइडों पे लिखने हैं, अगर आपने कोई एक्स्ट्रा नाम डालने हैं तो इन बिटवीन। आप एक एक करके मेरे साथ पार्टिसिपेट करना बच्चों। इस कैपेसिटर को देखें। बच्चों बताएं, ये कैपेसिटर कहाँ फिट करना है बिटवीन V1 एंड V डैश? क्या आप समझ गए कि मैंने इस कैपेसिटर C को V और V डैश में फिट कर दिया? बच्चों, एक एक कैपेसिटर का ध्यान रखना। बच्चों, इसे देखकर बताएं ये कहाँ है। आपको देख के पता लग गया होगा कि ये कैपेसिटर भी V1 और V डैश में ही है। आपका क्वेश्चन अचानक सिंपल होने लगेगा। बच्चों, टेल मी, ये V2 है। बच्चों, V2 से लेकर बताएं ये वाला कैपेसिटर, इसकी बात कर रहा हूँ, ये V2 और V डबल डैश में है। लो, आप देख सकते हैं मैंने लगा दिया। बच्चों ध्यान दें, ये कहाँ है इसको भी देखें, ये भी V2 और V डबल डैश में है। अचानक आपको ऐसा लगेगा कि कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी असेंबल करने के बाद इजी होने लगता है। इस क्वेश्चन में अगर आपने गिन के देखे होंगे तो टोटल 6 कैपेसिटर हैं, जिनमें से मैं 4 लगा चुका हूँ।
बच्चों आप टेल मी, ये कैपेसिटर कहाँ लगाऊं? तो आपने देखा होगा ये कैपेसिटर लग रहा है बिटवीन वी डैश एंड वी टू। तो आप देख सकते हैं मैं क्या करूँगा, मैं वी डैश और वी टू के बीच में इसे फिट कर दूँगा। बच्चों लुक एट दिस लास्ट कैपेसिटर, बताएं मैं इसे कहाँ फिट करूं? मैं इसे फिट कर रहा हूं वी डबल डैश और वी वन में, वी डबल डैश और वी वन में। लुक एट योर क्वेश्चन, दैट बिकम सो इजी। आप क्या देखेंगे, आप कभी भी किसी भी लेवल के क्वेश्चन को मुश्किल में नहीं पाएंगे। आप इसे एक स्टेप मुश्किल से आसान कर लेते हैं। बच्चों ये दोनों कैपेसिटर जो कि क्लियर दिख रहा है कि आपस में पैरेलल में हैं, लेट्स मेक द स्टोरी कि ये तो पैरेलल में हैं, तो क्यों ना इस फिगर को मैं आपके लिए ऐसे बना दूं कि ये 2C है और ये C है। आप इसके नीचे देखें, यहाँ पर एक मेरे पास कैपेसिटर C है और यहाँ तक जाते जाते उसका नाम 2C है। तो क्या ये फिगर कहीं ये तो नहीं? आपका क्वेश्चन अपने आप ही इजी हो जाएगा। ये 2C है, ये इसके साथ सीरीज में है, फिर बाहर चला गया। ये C है, ये उसके साथ 2C है, ये बाहर चला गया। बच्चों आप जरा ध्यान दें, इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन नहीं है, इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन नहीं है, ये अंटायर चीज इस अंटायर चीज के पैरेलल में है। ये अंटायर चीज इस अंटायर चीज के पैरेलल में है। अच्छा बताएं, ये जो अपर ब्रांच में 2C और C हैं, ये आपस में क्या हैं? आप जानते हैं वो सीरीज में हैं। और आपको पता है मैं क्या कर रहा हूँ, अपने इस आंसर में मैं यहाँ पर उसके ऊपर वाले हिस्से का आंसर 2C/3 लिख दूंगा। क्या ये फिगर कहीं इजी करते करते ऊपर वाली कहानी 2C/3 और बिल्कुल सेम नीचे नहीं है, क्योंकि ये भी तो C और 2C है जिसका नाम है 2C/3। तो आपका ये क्वेश्चन जो कि V1 और V2 के बीच में है, वो बढ़ते बढ़ते 2C/3 बच गया है। और जो कि दिख रहे हैं कि वो पैरेलल में हैं, जो आपस में सिंपल एडिशन करेंगे। और मेरे को लगता है अब आपके क्वेश्चन के सोचने का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर है 4C/3। बस क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखना, किसी भी क्वेश्चन में जैसे ही कोई एक दो वायर्स आपको बिना कैपेसिटर वाली प्रेफरेबल लगे, पोटेंशियल बांट के अपने क्वेश्चन को रीअरेंज करें। 99% क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। होप करता हूँ आपको कम से कम ये मेथड समझ आ गया है। थैंक यू।